So today we are going to understand that what is the rural marketing environment and what are the various factors which is going to affect the market. But before that, I just want to know that who is going to tell me about CIDO and DIC, Small Industrial Development Organization and District Industry Center. Who is going to tell me about in brief? कौन मुझे इसके बारे में बताएगा brief में? Ma'am, DIC stands for District Industry Center. This scheme was established in 1978, and this industry comes under the Ministry of Industry and under the Ministry of Social Justice and Empowerment. And this industry is this program is initiated by central government, and the main aim of DIC is to promote and to generate employment and to also promote entrepreneurs at district levels and also the district MSME sectors. And DIC also provides some of the eligibility criteria for loans facility for the scheduled caste, OBC, and Safai Kamchari. And there are various procedures for taking loans. And for example, repayment tenures, what are the maximum amount for this 3 or 4 sectors, and the functions of DIC is to provide loan facility for the for machinery and equipment, and and also the function of DIC is to promote the development and expansion for the industry. Okay, good. Who is going to tell me about CIDO, Small Industrial Development Organization? Who is going to tell me about it? CIDO is a small scale industry development organization. It was established in 1954 and it is an apex body and formulate and implementation of a small scale industry policy. There was a function of a CIDO, coordination with other industry, industrial development and extension, and there was a performance all state. It was performed all state and 27 office, 31 regional office, 31 small of scale industry, and except exempt KVIC and silk in board and other just like other bodies which was collected linked with the other industries, small industries, and their coordination with other industry. It's to involve a national policy for the development and of a small scale industry. It also coordinate policy and programs with of a various state government and function related with the industrial development, reserve and prevent small scale industry, and it collect the data of consumer import and export of goods by which they are know which consumer prefer which goods for the manufacturing in India, help in manufacturing. It also increased the small scale industry for government purchase and government market program. Okay. Good. And extension, feature of extension is a technical service, provision of a technical service and consultancy for increase level. Very good, Abhijit. Okay, हम बढ़ते हैं आगे. So what is the rural marketing environment? See, rural marketing environments में आपकी सारी situations आ जाएंगे, वो सारे factors आ जाएंगे जो आपके rural market को affect करते हैं. Rural market को आपके क्या-क्या affect कर सकते हैं? Demographic में आपके बहुत सारे factors आ जाएंगे, जैसे आपके income आ जाएगा, आपका basically age आ जाएगा, आपका education आ जाएगा. So demographic is something where these kinds of things comes under the demo, right? The second one is the something which is related with the social, related with the technological. There are so many various factors, बहुत सारे factors हैं जो rural market को basically affect करते हैं या फिर बोल सकते हैं rural market environment को बनाते हैं, build करते हैं. ठीक है?
So what is the rural marketing environment? It means that it those factors, वो सारे factors जैसे आपके जो demographic में physical हो गया, economical factor हो गया, social factors हो गया, जो rural marketing को affect करते हैं. ठीक है, तो अब इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते चले जाएंगे और फिर हम इसको समझते भी चलेंगे. ठीक है, सो रूरल मार्केटिंग क्या होता है? लिखिए, रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट. अच्छा, एक बात बताइए इसको लिखने से पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट क्या होता है? Surrounding of एग्जैक्टली आवर सराउंडिंग. ठीक है, The place where we are surrounding. हाँ, we are surrounded with the environment. And environment, how it makes, environment कैसे बनता है? लोगों से बनता है, जॉब से बनता है, एजुकेशन से बनता है, राइट? और we can also say some the practical things कि हम अगर normal term में environment को ले, normal term में environment को ले तो sun हो गया, फिर आपके wind हो गया, oxygen, each and everything makes the environment. तो वैसे ही रूरल मार्केट का एनवायरनमेंट इन सारे फैक्टर से अफेक्टेड है. अभी कौन कौन से फैक्टर है इसको भी हम समझते चलेंगे. सबसे पहले लिखिए, रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट. रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट means all those factors, means all those factors, means all those factors like demographic, demographic, economic, demographic, economic, social, etc., etc. ठीक है, which affect the rural marketing, which affect the rural marketing. रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट मींस ऑल दोस फैक्टर्स. इसका मतलब वो सारे फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल फैक्टर्स हो गए, जो रूरल मार्केट को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, अब ये सारे कंडीशंस जानना क्यों जरूरी है? व्हाई ऑल दीज कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड. सी, आप लोगों को भी पता है जो रूरल मार्केट है वहां पर सिचुएशन, अगर एजुकेशन वगैरह सब में वो बहुत बैकवर्ड चल रहा है ना. So maybe the environment वहां का जो होगा that is far different from the urban area. अब ये differences कैसे कैसे और क्यों आए हैं? ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन डिफरेंट है, इंफ्रा डिफरेंस है, पॉपुलेशन स्कैटर्ड है. तो जितने भी आपके ये सारे रीजंस की वजह से जो सोसाइटी है, वहां की जो सोशल क्लास है, वहां का जो कल्चर है, that is totally different and that is affecting the whole marketing scenario. Still the people are dependent on the arts, they are dependent on the traditional things, still there is a wall painting and all. वही सेम चीज जो है, इस एनवायरनमेंट जो है, ये एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, डायनेमिक है. ठीक है, पहले के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा विलेज, कॉटेज इंडस्ट्रीज ये सब में डिपेंडेंट थे, बट आज जो लोग हैं बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. सो द थिंग्स एंड सिनेरियो आर चेंजिंग, द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. If the environment is changing, definitely it is going to affect the marketing, it is going to affect the consumption level, it is going to affect the income as well. ठीक है, और ये सारी चीजों को फिर फाइनली मार्केटिंग को इफेक्ट करना है. इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस डायनेमिक नेचर ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, अगर हम सिर्फ मार्केटिंग एक्टिविटीज की बात करें, एग्जांपल में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग एक्टिविटीज डन इन द रूरल एरियाज, इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द रूरल एरियाज. ठीक है, अब यहाँ पर जो रूरल मार्केटिंग है, इसमें रूरल एनवायरनमेंट अलग है अर्बन एरिया से. तो कंपनीज को जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, हर चीज के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ा है, यूज करना पड़ा है. रूरल मार्केटिंग जो है वो बेसिकली फोकस होता है किसके द्वारा? ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. अब एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट में आपका हर चीज होगा. एनवायरनमेंट में आपका पॉजिटिव भी चीजें होंगी और आपकी नेगेटिव भी चीजें होंगी, यानी आपके लिए थ्रेट भी होगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी होगा. क्या? एनवायरनमेंट के वजह से. ठीक है, so because of this both thing will be happen and that is happen due to the rural marketing environment, so it is the important factor. क्लियर है? अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंडीशंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पूरे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं,
कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको देखते चलेंगे, ठीक है। सो लिखिए द 5 मेन features of the rural market, their rural marketing environment. 5 main features of rural marketing environment. कौन कौन से फीचर्स हैं 5, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला लिखिए, फर्स्ट लिखिए रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स, अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो मैं आप लोगों को बता रही थी। देखो, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल इंटरनल को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। देखिए, एक होता है आपका इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो होता है ना, वो कंपनी के विदिन होता है। अगर मान लीजिए कि HUL आपकी कंपनी है, तो इसका बिजनेस स्ट्रक्चर, इसके एम्प्लॉयज जो भी होंगे, ये इसको कंट्रोल कौन करेगा? HUL। यानी कि ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कंपनी कंट्रोल कर सकती है खुद से, कंपनी कंट्रोल कर सकती है ऐसे बेसिकली इतने ये सारे फैक्टर्स को इजीली, इन सारे फैक्टर्स को समझ सकती है, इन सारे फैक्टर्स के लिए डिसीजन ले सकती है। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के कंट्रोल से बियॉन्ड होते हैं। कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी कंपनी को ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स वही होंगे that is not beyond control of the company। कंपनी इनको कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन कंपनी इसके लिए रेडी रहती है। और ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये टोटली अनसर्टेन होते हैं, यानी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कभी भी ये ऐसी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि कुछ रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के, वो हो गए, या फिर नेचुरल कैलेमिटीज हो गई। ये सारी चीजें क्या है? दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द थिंग। आप कंपनी होके आप कंट्रोल नहीं कर सकते इनको, है ना, लेकिन अफेक्ट तो करती है कंपनी को। तो यहीं पर वो पॉइंट आया, अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। और इसमें लिखिए कौन कौन से इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। लिखिए the rural marketing is greatly, या फिर बोल सकते हैं it is greatly affected by external factors like demographic, economical, political, socio-culture, ठीक है। It is affected by the external factor like demographical, economical, political, socio-culture and etc. ठीक है। अब एक चीज देखिए आप कि ये जो डेमोग्राफिकल है मैंने तो बता दिया, the increasing the population, decreasing the population, the age groups, income level, all these comes under the demographic. इकोनॉमिकल में क्या होगा? जैसे कि स्ट्राइक हो जाना, इन्फ्लेशन हो जाना, यानी महंगाई बढ़ जाना, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। या तो फिर हम कह सकते हैं पॉलिटिकल में, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई भी देश में अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं, हर 5 साल में देखो बदलना, दैट इज अ डेमोक्रेसी। बट अगर मान लो तुरंत बदलाव आ रहा है गवर्नमेंट जो है उनकी बार पॉलिसीज बदल रहे हैं, नई गवर्नमेंट आ रही है, अपने साथ नई चीजों को लेकर आ रही है, so this kind of things is going to hamper the marketing activity. So political situation of the company is also the external factor which is affecting the overall marketing. Clear हो रही है बात? समझ में आ रहा है everyone? So यहाँ पर, और socio culture is something about your tradition. If we are talking about the rural areas, definitely their tradition is like they are still rich in the tradition. They are still following the things. But if we compare it with the urban areas, the environment of the rural market is totally different. ठीक है। अब हम बात करेंगे और एक और चीज, the population is also increasing there, but there is a no scope of income. ठीक है। तो ये सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। और एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्यों ध्यान में रखना है रूरल मार्केटिंग में? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट?
बिकॉज अब जो रूरल मार्केट है उसको हम अर्बन मार्केट की ओर कन्वर्ट करने की कोशिश में लगे हैं. So if we started converting and comparing the rural and urban market, in that case definitely we have to understand all these factors which is going to affect the rural market as well. Nowadays even they are affecting, but still. Next is the flexibility. The second feature या second element is flexibility. Flexibility. See, rural environment is not static or rigid. Okay, it is highly dynamic and keep changing compared to the कुछ अगर 10-20 साल पहले की चीजें हम देखें तो 10-20 सालों में काफी डिफरेंस आए हैं आपके रूरल मार्केट में. ठीक है, तो कहा जा सकता है कि रूरल मार्केट जो है ना दैट इज नॉट रिजिड, यानी वो एक स्थिर नहीं है, या उसका जो बेसिकली सिचुएशन है दैट इज नॉट दैट दे आर स्टैटिक, वो एक जगह पे स्थिर है. They are flexible, they are changing. The company is also taking the initiative, government is also taking the initiative. So we can say that the rural marketing environment is not safe. The situation has changed. What I said that the earlier the people are dependent on the agriculture a lot. Still the rural people are dependent on that, but the people are migrated. The people are now becoming the educated. They are also get that advancement of technology. Not as such comparison to the urban areas and the other countries, but still they are becoming the part of the technological advancement as well, right? तो ऐसे केस में जब आपके 20-25 साल पहले के गांव को देखेंगे और आज के गांव को देखेंगे तो चेंजेस आए हैं, ऐसा नहीं है चेंजेस नहीं है. तो रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है आपका वो दैट इज चेंजिंग. The income level is also nowadays comparatively to the earlier one अब आपका increase हो रहा है. So that is not static, that is changing. The next one is complexity. Next one, the third feature is complexity. ये सारे rural marketing environment के parts हैं. Next one is complexity. Complexity. So what does the complexity means? क्या होता है complexity? Difficult to analyze, right? So यहाँ पर complexity का मतलब यही है कि ये सिर्फ एक दो factors, these things, factors के अलावा भी अगर हम सिर्फ normal rural market को देखें तो बहुत सारे factors. अगर हम देखें तो सारे factors को पढ़ पाना, वहाँ के nature को देख पाना rural market को, it is very difficult. Because of the different traditions, custom, languages, different barriers, the lack of infra, education, electrification, these all are so many problems. If we will dependent on 2-3 factors, so it is not going to give a proper view of the rural marketing environment. So it is very much difficult to understand the rural marketing. Okay? Next one is relativity. See, the company have different approaches. Like HUL का approach बिल्कुल अलग होगा rural market के लिए, ITC का बिल्कुल अलग हो सकता है, बजाज का अलग होगा, उषा का अलग होगा maybe. So it is varying according to different company. ठीक है? So in the relativity, what we can say that the impact of the rural marketing environment may be different from company to company. यानी हर कंपनी पे कंपनी अप्रोचेस भी अलग चूज करती है और कंपनी पर रूरल मार्केट का इफेक्ट भी अलग अलग होगा. कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जो कंपनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और वो कुछ होते हैं जो बिल्कुल कंपनी को लेस इफेक्ट करते हैं. यानी कि कहने का मतलब ये है कि the rural market is affecting the different companies according to the different perspective. एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि अगर हम सिर्फ वैक्सीनेशन का एग्जाम्पल लें, if we take the vaccinations example, in most of the people in the rural areas maybe they are afraid of taking the vaccination. So now those companies who are basically making the vaccination, बस इसको as example मानो, it is not true. तो हो सकता है it might be possible कि वो जो है वो बेसिकली एक कैंपेन भी रखवाए लोगों को वहां समझाने के लिए. हो सकता है कि वहां के लोग बहुत ज्यादा डिनाई करें इसको लेने से, वैक्सीन को लेने से.
तो ये, और एक जो कंपनी मान लीजिए वो क्लोथ को सेल कर रही है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि मान लीजिए कि वो बहुत सस्ते और नॉर्मल प्रोडक्ट सेल करे तो इजीली प्रोडक्ट सेल हो रहा है। कहने का मतलब है कि व्हाटएवर प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू बेसिकली प्रोवाइड टू द रूरल कंज्यूमर, व्हाट उसका इम्पैक्ट अलग अलग होगा। रूरल जो कंज्यूमर्स है, रूरल जो मार्केट है, वो अलग तरीके से आपके साथ क्या कर सकता है, आपको इफेक्ट कर सकता है। कौन से प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो और कौन सी कंपनी का क्या क्या अप्रोचेस है, दैट कैन बी डिफरेंट। हर एक कंपनी के लिए सेम रूरल मार्केट नहीं होगा, रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट सेम नहीं होगा। क्लियर हो गया बात? बट आई जस्ट, the impact of rural marketing environment may be different from company to company or country to country. Next, uncertainty. It is a very difficult है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि मार्केट में इन्वायरमेंट जो होगा वो कैसा होगा। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो आजकल एनवायरनमेंट बहुत फास्टली चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द फैशन, लेटेस्ट things we want, because of the income level is increasing. So we can say that the rural market is not static, it is changing, and that is even also uncertain. क्या आगे बदलाव होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करना कि क्या क्या एनवायरनमेंट में चेंज होगा, that is very much impossible. But nowadays what we are basically observing that the environment is changing continuously. ठीक है, अब अगर हम कुछ रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को क्यों पढ़ना जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले, क्योंकि अगर टू स्टडी द डेवलपमेंट एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रूरल एनवायरनमेंट को समझने के लिए इस बहुत ज्यादा जरूरी है आपके रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को पढ़ना और समझना। फैक्टर्स बहुत सारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट में, आप बहुत सारे फैक्टर्स देखते हो, बहुत सारे चेंजेस को देखते हो। इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बदल रहा है, इनकम बदल रहा है, साइज बदल रही है मार्केट की, क्वालिटीज बदल रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बदल रहा है, ऑक्यूपेशन बदल रहा है। सो ऐसे केस में कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा है, चेंजेस भी बहुत ज्यादा है, और रूरल मार्केट का के भी ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए तो फर्स्ट थिंग जो है, कभी भी किसी भी कंपनी को रूरल मार्केट में अगर लॉन्च करना है नए प्रोडक्ट को, तो वहां के एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है, वहां की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिगार्डिंग टू एवरी पर्सपेक्टिव, डेमोग्राफिक, सोशल, हर पर्सपेक्टिव से। अगर कंपनी को कोई पॉलिसीज बनानी है, इफ द कंपनी वांट टू मेक द पॉलिसीज, in order to prepare the company policy, कंपनी की पॉलिसी को बनाने के लिए मार्केटिंग मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी की पॉलिसी के साथ साथ एनवायरनमेंट में चेंजेस को भी कंसिडर करे। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल में कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एसी और कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स को ले जो रूरल मार्केट में सेल नहीं होगा, ठीक है, या फिर आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रूरल मार्केट में लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसको आप बनाओगे तो भी या सेल करोगे तो भी सेल तो नहीं होना है ना। तो ऐसे केस में कंपनी अगर कोई पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रही है, तो जो फैक्टर्स जो हैं जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करे उनको भी कंसिडर कीजिए, कंसर्न रखिए। कंपनी की जो पॉलिसी है रूरल मार्केट के लिए बिल्कुल अलग होगी अर्बन से, ट्रू, और पॉलिसीज जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि वहां के एनवायरनमेंट के साथ कितना सुटेबल है। जैसे प्रमोशन की अगर हम फैसिलिटी बताए तो ऑब्वियसली वहां पर वॉल पेंटिंग एंड ऑल ये सब तो चीजें होती हैं, बिल्कुल अलग है अर्बन से। अर्बन में आपको ये चीज नहीं दिखेगा, इट इज इलीगल इवन, लिखा होगा, आपने देखा होगा कि यहाँ पर पोस्टर लगाना मना है, यहाँ पर चित्र बनाना मना है, लिखा होता है ना। So this is a kind of thing that in the urban areas the companies are avoiding to do such things, but in the rural areas they are doing such things, मतलब because of the differences of in both market। और मार्केटिंग डिसीजन में भी हेल्पफुल होगा कि आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए समझना जरूरी है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन के लिए। तो प्रोडक्ट डिसीजन से रिलेटेड चीजों को, प्राइस डिसीजन से रिलेटेड चीजों को समझने के लिए, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक, सब चीज से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए इट इज कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड द रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। और नए मार्केट को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी जरूरी है आपका रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझना। नए मार्केट पे लॉन्च करो, कोई भी पॉलिसीज बनाओ, डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ भी बनाओ, तो फॉर ऑल दीज थिंग्स, फॉर ऑल सच थिंग्स व्हाट वी नीड बेसिकली टू अंडरस्टैंड द रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट।
ठीक है, अब न्यू मार्केट कैसे हो सकता है, मतलब सुटेबल टाइम देखते हुए आप रूरल मार्केट में कोई नए मार्केट को भी सर्च कर सकते हो। रूरल मार्केट की कंडीशन को समझने के लिए भी रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। कंडीशंस में क्या क्या होंगे, वहां के कस्टमर्स कैसे हैं, वहां के कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, सप्लायर्स क्या है, इंफॉर्मेशन मार्केट कंडीशन क्या है, डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो क्या है गुड्स का, फैशन क्या है वहां, टेस्ट क्या है, कंपटीशन क्या है, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है। तो इन सारी चीजों के लिए, यानी कि फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन ऑफ द मार्केट वी जस्ट नीड टू स्टडी द रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स? थ्रेड्स को समझने के लिए, जैसे अचानक से कुछ टेक्निकल चेंजेस आ गए, अचानक से फैशन बदल गया, इकोनॉमिक चेंज हो गया, लैक ऑफ मटेरियल, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसी कोई भी थ्रेट आगे फेस ना करना पड़े कंपनी को, तो इसके लिए भी रूरल इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट को पढ़ना जरूरी है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट फॉर टुडे आई थिंक इट इज इनफ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द वेरियस। अच्छा, यू आल्सो बिलोंग टू रूरल एरिया? बिलोंग करते हो आप? नहीं, गांव जाते हो? ठीक है। अच्छा, गांव में सिचुएशन जो है, पहला तो यही वर्ड्स है कि टुडे यू सेड मी, यू टोल्ड मी अबाउट द सिचुएशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन है, जो डेमोग्राफिक वहां का है, ये सारी चीजें, उसके अलावा जो कह सकते हैं वहां का एजुकेशन लेवल है, ठीक है। तो इन सब की वजह से आपका जो मार्केट एनवायरनमेंट है दैट इज कॉम्प्लेक्स, यानी जटिल है उसको समझना, यानी समझने में मुश्किल है, डिफिकल्टी है। तो दिस इज द फीचर ऑफ रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस, different people, cultures, different kind of mentality, education level. So this, because of this, रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, समझना बहुत ही मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। समझ में आया? Anyone Yes, have ma'am. any doubt whatever we study today, the features of rural marketing environment, what is the meaning of rural marketing environment, and why it is important to study the rural marketing environment? तो ये 3 टॉपिक हम लोगों ने आज किया है। किसी को भी कोई डाउट, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया हो? एनीवन? क्या बदलाव होगा, क्या नई चीजें ऐड ऑन होंगी, कैसे एनवायरनमेंट बदलेगा? तो ऑल दीस थिंग्स, समथिंग। मोल इंडस्ट्री है जो एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है, जो कि अनमोल बिस्किट, अनमोल बिस्किट, राइट? यस मैम, Okay. केक्स एंड बिस्किट। एंड सेकंड वन इज ब्रिटानिया फैक्ट्री। Britannia factory is in your village? यस मैम, इन हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया। Okay, in Hajipur industrial area. Okay, next. This is also making FMG product, biscuit factory. And third one is beverage plant. Which plant? Beverage plant. Yes. Okay. Pepsi plant. And कौन सी कंपनी है, नाम बताओ beverage plant का? And Pepsi making plant. Pepsi. Yes ma'am. Okay, next. Soft drink company. Okay. And fourth one is Apex Pet Product Private Limited, जो कि मैन्युफैक्चर करती है पेट परफ्यूम एंड पेट बॉटल्स, जो भी हमारा बॉटल्स आता है मैम वो सब। एंड फिफ्थ वन इज मैम फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है ट्राइडस रिमेज, जो मेडिसिन बनाती है। ओके, मैंने मैम हम 5 ही नोटिस किए, लेकिन बहुत सारे हैं। वेरी गुड। So all these situated in your nearby your village, right? Yes ma'am. Good. Okay, so anyone else who want to tell me about the industries which is situated in your village? You want to tell me about it? So you all in the next class on Thursday. Anyone have any doubt?